Okay, now the whole session is going to be recorded. As you know, ki King Lear is what? King Lear is a well-known tragedy of William Shakespeare, and this tragedy published in 1605. You know it very well. He published in 1605, and King Lear has King Lear is a tragedy. Is It's a social tragedy. There are some points which I want to discuss with you whenever you are going to take any tragedy or whenever you are going to study any tragedy, what you have to remember. Number one, you have to remember its a publishing date. You have to remember its a publishing date. You will come 1605 and you will come to know ki what I have written. I have written it's a publishing date. That's very important. It published in 16. Are you not getting my voice? Can any other person tell me, are you getting my voice? Yeah, okay. So what I want to tell you ki whenever you are going to take any play, what is the important point? First, you have to go with what? First, you have to go with the publishing date. And what is the publishing date? The publishing date is 1605. तो एक चीज ये इसके पहले अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इफ यू गो विथ फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर यू विल कम टू नो उसके लिए मैंने आपको बताया था होम एच फॉर हैमलेट ओ फॉर ओथेलो के फॉर किंग लियर एम फॉर मैकबेथ जिसमें मैंने तीन को कवर किया था और आपका किंग लियर रह गया था तो वी आर लकी टुडे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर ट्रेजेडी किंग लियर it published in 1605 and second important question ki when you are going to take any play of William Shakespeare any drama or any novel especially any drama or novel what you have to do you have to go if you find the source you have to go with source here source is written you will come to know iska jo source hai that is Holinshed if you remember that Holinshed ka chronicle एक उनका क्रॉनिकल था एक वर्क है जिसमें यू विल कम टू नो उन्होंने क्या किया ही हैज प्रेजेंटेड द लाइफ स्टाइल द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जो इंग्लिश किंग थे उनको लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है तो आई विल नॉट से कि इट्स अ हिस्टोरिकल प्ले ये जो है आपका हिस्टोरिकल प्ले नहीं है बट इट्स अबाउट अ किंग तो लेकिन सोर्स कहां से लिया गया सोर्स इसका हॉलिंसेट का क्रॉनिकल ही है हॉलिंसेट का क्रॉनिकल तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द सोर्स हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल CHRONICLE you will come to know with this point so what the thing you have to go first you have to go with the publishing date that is 1605 number one second point you have to go with source and what is that source is Holinshead's chronicle third point is what the third point is setting is very important and whenever I talk about setting either you go with Macbeth तो आपको पता चलेगा कि जो मैकबेथ की सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में रही है और जो आपका हैमलेट रहा है वो आपका डेनमार्क में रहा है तो यू विल कम टू नो इसी तरह से जो इसका सेटिंग है इसका सेटिंग आपको कहां पे मिलेगा इंग्लैंड में मिलेगा सो व्हाट आई वांट टू से व्हाट आई वांट टू टेल यू यू हैव टू गो विद दीज बेसिक पॉइंट्स आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए हमेशा अपने माइंड में ध्यान में रखना चाहिए कि शेक्सपियर के किसी भी प्ले की स्टडी करते समय if you are going to study if you are going to read if you are going to cover any play of Shakespeare you have to go with these four basic points date source setting and the next is theme the theme of this play is highly significant and this shows what short sightedness SHORT short sightedness SIGHTEDNESS and what do you mean by short sightedness this short sightedness refers to what it refers to तंग सोच वाला तंग नजरी मतलब तंग नजर वाला नैरो माइंडेड जिसे हम कह सकते हैं या छोटी ख्याल का आदमी दूसरा चीज जो है इसी का एक और आप थीम कह सकते हैं क्रीडुलस चिकनी चुपड़ी बातों में आके किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके जल्दी विश्वास करना किसी पर सो यू विल कम टू नो कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है
और जब भी आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना और हमें इसे भूलना नहीं चाहिए कि इसका थीम क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका सेटिंग क्या है। और जो फोर्थ पॉइंट है, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, किस तरह की ये ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक है, सोशल है, और उसमें क्या चीजें हैं। यू विल कम टू नो इट्स अ सोशल ट्रेजेडी, it's a social tragedy. Such type of problem, the problem which has been presented in this tragedy, the problem which is here, you will come to know, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आपको सामने नजर आएगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार आप ऐसा चीजें जो है, रिलेशनशिप बिटवीन फादर डॉटर, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू विल कम टू नो कि डॉल्स हाउस एक प्ले रहा है हेनरी इब्सन का। मैं जो नहीं कहता कि दैट्स अ ट्रेजेडी, लेकिन ऐसी सब्जेक्ट मैटर को, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन फादर डॉटर, ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो, बहुत सारे प्ले आए हुए हैं जिसमें ये डील किए जाते हैं। लेकिन इस प्ले में केवल यह रिलेशनशिप नहीं है कि एक फादर का एक डॉटर से रिलेशनशिप है, बल्कि यहाँ का जो रिलेशनशिप है वह ह्यूमन, वो एक ह्यूमन नेचर की बात करता है, साइकी की बात करता है कि चाहे आप राजा हो, चाहे आप कि राजा होने के नाते आपकी बेटियां हों, लेकिन दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का नेचर समान होता है। whether you belong to aristocratic class, whether you belong to lower class, whether you belong to upper class, whether you belong to middle class, you will come to know उन सबका नेचर एक जैसा होता है। तो जब भी मैंने आपको शेक्सपियर पढ़ाया या शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर जब भी मैंने बात किया, मैं आपके साथ एक पॉइंट पे जरूर बात करता हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी, PSYCHE, यू विल कम टू नो। मैंने हमेशा इस पर बात किया और हमेशा इस पर मैंने जोर दिया कि ये जो ह्यूमन साइकी होता है, यह उनके हर ड्रामा में देखने को मिलेगा, स्पेशली ट्रेजेडी में। यू विल कम टू नो कि किस हिसाब से जो है मैकबेथ जो है किंग डंकन का मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद उस पर रिपेंट भी करता है और कहता है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। एंड आप ये भी देखेंगे लेडी मैकबेथ भी रिपेंट करती। तो यह ह्यूमन नेचर है जो मैकबेथ पे बात की गई है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री जो है किंग किंग लियर और इनकी 3 डॉटर्स के बीच में डेवलप होती है, वे एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, कौन सी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं जिसमें राजा जो है उनकी माया मोह में आ जाता है, या राजा का नेचर क्या, या या I have written here short-sightedness या credulous, short-sightedness or credulous. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, you will come to know कि ultimately what do you get here? You are getting here कि जो human psyche है वह जो है उनके हर प्ले में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं किसी एक प्ले में। ह्यूमन साइकी का रोल इतना ज्यादा रहा है कि whether you go in tragedy, whether you go with comedy, you will come to know कि एक जो मानव स्वभाव है वो हर क्लास में देखने को मिलेगा, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो। तो शायद जो है मानव स्वभाव को, ह्यूमन साइकी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी, जो बताने की कोशिश करते हैं कि किंग लियर राजा भल्पी से हैं, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरी है। क्योंकि मैन के लिए कहा जाता है कि मैन इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स। अगर मैन की कोई कमजोरी नहीं होगी तो शायद उसका डाउनफॉल नहीं होगा, कोई ना कोई कमजोरी होगी, या तो उसका बैड लक होगा या तो उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। आप वीक पॉइंट की जहां तक बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मैकबेथ का वीक पॉइंट क्या है, इविल एम्बिशन है। इसी तरह से हैमलेट का वीक पॉइंट क्या है, डिले इन एक्शन है। और ओथेलो में जब आप बात करते हैं तो वहां पर जो है जेलस नेचर, आपको जेलसी ना वहां पे नजर आती है कि एक वीक पॉइंट है जो सबको बर्बादी के मुहाने पर लाता है। यहाँ पर भी राजा का एक वीक पॉइंट है और वही वीक पॉइंट ही इसका थीम है, वह क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि तंग नजरी, मतलब तंग नजर वाले जो शायद अपनी बेटियों की चालाकी को नहीं देख पाते, और जो बेटियां चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं उनके विश्वास में आ जाते हैं, उनके विश्वास में आने पर साम्राज्य का बंटवारा कर देते हैं। जब सारी चीजें हाथ से निकल जाती तब उनको एहसास होता है कि जो मेरी तीसरी बेटी थी कॉर्डिलिया, शायद
सॉरी, जो मेरी तीसरी बेटी थी शायद वह जो है सही थी, जिसको कि मैंने साम्राज्य का हिस्सा नहीं दिया, जिसने मुझसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन पर कि जब मैंने उसे क्वेश्चन किया कि हाउ मच डू यू लव मी या हाउ मच डू यू लाइक मी, तो उसने कहा था कि जितना एक बेटी को एक फादर से लव करना चाहिए उतना ही मैं आपको लव करती हूँ, उतना ही मैं आपको चाहती हूँ। तो मैं आई एम नॉट हियर टू टेल यू स्टोरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव गॉन विद द स्टोरी, और स्टोरी जब कैरेक्टर बताएंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और स्टोरी में आपको ये पता है कि तीन बेटियां हैं, तीनों का नेचर अलग अलग है, तीनों कैसे जो है क्या करती हैं कि ट्रीट करती हैं अपने फादर को। तो जो दो बेटियां हैं, उन दो बेटियों में जो है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट दे वांट टू गेट, और जो तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है वो क्या प्राप्त करना चाहती है, उसका क्या होता है। तो राजा उनके आंसर को सुन करके जो है उनके साथ कैसा बिहेव करता है। बेटियां फिर बाद में जो है जिसको चाहती हैं, पाना चाहती हैं, जब उसको प्राप्त कर लेती हैं तब वे किंग के प्रति, अपने फादर के प्रति, केवल किंग की नहीं बल्कि अपने फादर के प्रति कैसा बिहेव करती हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि एक तो यहाँ पे एक किंग की बात की गई है, लेकिन वह किंग फादर भी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, यहाँ पर डॉटर की बात की गई है, लेकिन वे डॉटर के साथ साथ जो है क्या है, वे डॉटर भी हैं, लेकिन वे जो है एक, अगर मैं कहूं कि कोर्टियर भी हैं, दे आर लिविंग इन द कोर्ट ऑफ, दे आर लिविंग इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर। सो जो किंग लियर है या किंग लियर जो फादर का रोल अदा करते हैं, क्या जस्टिस कर पाते हैं? The question which you have to keep in your mind, the question is that as a father, what the role you have played? As a father, have you done justice with your daughters equally? या आपने जस्टिस नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपकी नजर तंग थी। और एज अ फादर, क्या रियली में जो है आपने जो है उस लव को, जो बेटियों को तीनों में बराबर देना चाहिए था, वो आपने दिया? तो केवल आपको इस आदमी को राजा की हैसियत से नहीं देखना है, बल्कि आपको समझना है कि जो किंग है, किंग एक डेजिग्नेशन है, लेकिन उस डेजिग्नेशन से पहले वो क्या है, उस डेजिग्नेशन से पहले वह ह्यूमन बीइंग है, वह मानव है। राजा तो राजा है ही है, लेकिन आप ये सोचिए कि राजा है क्या? राजा राजा होने से पहले मानव है। अगर वह मानव है तो उसका अपना नेचर क्या है? क्या वह मानव होगा तो और जो मानव है, जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के हैं, क्या उनका नेचर अलग होता है? या राजा, अगर कोई कोई मानव अगर राजा बन गया तो क्या उसका नेचर अलग हो जाएगा? इन माई मोटिवेशनल लेक्चर ऑलवेज आई सेड कि हर इंसान को तीन चार चीजों की जरूरत होती है लाइफ में: कपड़ा, मकान, खाना, और साथ ही साथ उसको एक सम्मान की जरूरत होती है जहां पर वो रहे। अगर ये चीजें आपको नसीब जब हो जाती हैं, तब आपका एम्बिशन आगे बढ़ता है, तब आप जाकर के कुछ और चीज करना चाहते हैं। जब मैकबेथ को ये सारी चीजें मिल गई थी, तब जाकर के मैकबेथ ने राजा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। जब इंसान की ये सारी चीजें पूरी होती हैं, तब उसके बाद वह और कुछ सोचता है। यहाँ पर आपको ये सोचने की कोशिश करना है कि जो किंग लियर है, क्या किंग लियर को इसकी जरूरत नहीं है? किंग लियर को इसकी जरूरत है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो कि दिस किंग इज गोइंग टू बी एन ओल्ड किंग, और इसको अपने जो है चीजों की जिम्मेदारी देनी है। लेकिन इसके पास कोई बेटा नहीं है, तीन बेटियां हैं, तो तीन बेटियों में जब वह साम्राज्य का बंटवारा करता है, तो साम्राज्य के बंटवारे करने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस टू डिवाइड किंगडम एमंग थ्री डॉटर्स? दिस इज द क्वेश्चन। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, मिस, मैं आपको, आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि दिस इज द स्टोरी, कि कॉर्डिलिया आती है तो रेगन आती है तो ये कहती है वो कहती है, फ्लैटरी है, ऑल दिस। नो, लॉजिकल क्वेश्चन पर आप आइए। लॉजिकल क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करता है कि आपके के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि किंग लियर जो है ह्यूमन बीइंग होने के नाते, क्या अपनी जो है फादर होने के नाते क्या वह जस्टिस करते हैं? नंबर वन पॉइंट, डू यू फाइंड एनी जस्टिस? क्या जस्टिस आपको लगता है तीनों बेटियों के बीच में? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग की अपनी कुछ कमजोरियां होती, उसी कमजोरी का वो शिकार हो गए हो? इज ही द प्रे ऑफ दिस पार्टिकुलर, यू 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 कैन यूज द वर्ड द वीक पॉइंट? ऐसा तो नहीं कि उनका एक कोई वीक पॉइंट रहा हो। तो इन्हीं पूरी केमिस्ट्री को, इन्हीं पूरी चीजों को समझने के लिए वी आर गेदर्ड हियर, एंड आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस सेशन, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय।
So what I want to say, what I want to tell you कि whenever you are going to study this particular play, don't take King Lear only as king, but always remember that जब भी आप King Lear को ले तो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि King Lear फादर है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि King Lear का फादर होने के साथ साथ राजा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह से है। लेकिन किंग होने के अलावा, फादर होने के अलावा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहाँ पे निभाया, उनसे चूक कहाँ पर हुई, उनसे गलती कहाँ पर हुई, और आखिर कौन सी ऐसी गलती थी जो उनके जो है पतन का कारण बना। तो ये सारी की सारी चीजें, और इस चीज को आप अच्छे ढंग से तब समझ पाएंगे जब हम अब कैरेक्टर पर बात करेंगे। क्योंकि मैंने डेट पर बात किया, मैंने सोर्स पर बात किया, मैंने सेटिंग पर बात किया, मैंने थीम पर बात किया, मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी पर बात किया कि सोशल ट्रेजेडी है, मैंने आपको ये बात किया कि ह्यूमन साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते चाहे आप एरिस्टोक्रेटिक क्लास में हो, चाहे आप लोअर क्लास में हो, हर इंसान का नेचर एक जैसा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। यू विल गेट या यू विल कम टू नो सम वीक पॉइंट। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन पूरी चीजों को आपको समझना है, इन पूरी चीजों को आपको कवर करना है। तो आई थिंक कि मुझे मींस जस्ट आई वांट टू इरेज दीस थिंग्स व्हिच यू आर व्हिच इज रिटन हियर ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। So I think that you all have noted down. Can anyone respond me? Yeah. Yeah. Okay. So you will come to know कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे आपको समझना है उन सब चीजों को। Now I will talk about what? Now I will talk about characters. और कैरेक्टर्स को जब हम बात करेंगे तो एक एक पॉइंट को उसके कैरेक्टर्स को लेंगे कि इन्होंने क्या किया, उनका क्या रोल रहा है, व्हाट ही डिड। सो रिमेंबर दैट कि जब भी आप बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहला कैरेक्टर आपका क्या है? किंग लियर। किंग लियर, हीरो ऑफ द प्ले, फादर ऑफ थ्री डॉटर्स, father of three daughters. If I write this side, are you getting the point? Is it visible? Yeah, okay, okay. So what I wrote, I am just telling you about character. Now the first character is King Lear, and this King Lear is what? This King Lear is hero of the play, father of three daughters. Now the second character is Gonril, Gonril, Gonril. You will come to know कि जो Gonril है, this particular eldest daughter, ELDEST, eldest daughter, eldest daughter, eldest daughter of the king and wife of Duke Albany, wife of Duke of Albany. So you will come to know what? You will come to know कि King Lear, second point Gonril, and the third point is what? The third point, yeah, the third character is what? The third character is Regan, REGAN, Regan. About Regan, you will come to know she's the second daughter of king, of the king, wife of Duke of Cornwall, wife of Duke of Cornwall. Give me only 1 minute. I am here again. Give me only 1 minute.
आई थिंक यू ऑल आर सेइंग कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बोर्ड को नहीं, अभी तो ऐसे ही रखा गया, अभी स्टैंड आ नहीं पाया। स्टैंड वाले से मैंने कहा, वो कल जो है नहीं ला पाया। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आपको सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? ओके। कुछ हल्का सा हुआ? रोशनी आ गई है? बोर्ड चमक रहा है? ठीक है, डजंट मैटर दिस पर्टिकुलर। अच्छा, I was telling you about what I was saying. Yeah, mute yourself, and remember that the whole session is going to be recorded. Whatever you said, whatever I said, all the things are there. And then Rajesh will say, "Ki sir, keep it in mind. Ki the session is going to be recorded." So now the question is that कि अगर आपको ज्यादातर चीजें दिखाई पड़ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, because you are also getting my voice, तो ऐसा नहीं होगा कि जो चीज दिखाई पड़े आप उसको लिख नहीं पा रहे होंगे। तो सारी की सारी चीज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू कि किंग लियर कौन है, गॉन्ड्रिल कौन है, रेगन कौन है। तो रेगन के बारे में आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट कि सेकेंड डॉटर ऑफ द किंग, वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। इसकी वाइफ है वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, दैट इज द फोर्थ कैरेक्टर आई वांट टू टेल यू, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉर्डेलिया। About Cordelia, this is what, this is the third daughter. If I use the word ki she is the heroine of the play, then there is no exaggeration, because the whole story moves around the king and this particular daughter Cordelia, heroine of the play. Next point I want to tell you कि when you go with these things या when you cover these points कि Cordelia जो है आपका क्या है, she is the third daughter of the king, और इसकी जो मैरिज हुई है, मैरिड ड्यूक ऑफ फ्रांस, मैरिड you will come to know कि she married whom, she married Duke of France. Now the next character which I want to tell you, that is the fifth character, Earl of Gloucester, Gloster, ये पूछा जा चुका है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, the most senior courtier, the most senior courtier, the most senior courtier in the court of King Lear, in the court of King Lear.
Again, I want to tell you some points which you have to remember. That's highly significant. कि now we are talking about what? Now we are talking about characters. हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? Characters के बारे में बात कर रहे हैं. And you will come to know कि in this means on this whiteboard, I have written the first character King Lear, that is the hero of the play, father of 3 daughters. पहली जो बड़ी बेटी है उसका नाम गॉनरिल है, जिसकी शादी किससे होती है? ड्यूक ऑफ एल्बेनी से होती है. और ये बताने की जरूरत नहीं कि कितनी चालाक है. इवन इसकी तुलना एक कहा जाता है, समटाइम्स यू विल कम टू नो क्रिटिक्स से या क्रिटिक्स कंपेयर दिस पार्टिकुलर डॉटर ऑफ किंग लियर विद लेडी मैकबेथ. इसकी तुलना लेडी मैकबेथ से भी की जाती है. सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि these are not only characters, but these ultimately they refer to what? They refer to the different nature of human beings. It refer मतलब ultimately you will come to know कि किंग लियर है, गॉनरिल है, रेगन है, कॉर्डिलिया है, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही फादर है, उस एक ही फादर की 3 बेटियां, लेकिन तीनों का नेचर अलग अलग है और तीनों अपने फादर के प्रति कैसा बिहेव करती हैं. I am requesting कृष्णा जी कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Most of the time you are visible on screen. So what I want to say कि you will come to know King Lear, you will come to know Goneril, you will come to know Regan, you will come to know Cordelia. जो भी कैरेक्टर्स हैं वे सबके सब आपको देखने को मिलेगा कि वे पूरा का पूरा एक सिचुएशन है. और वो किसके बारे में बात करते हैं? एक ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर को लेकर के जब भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया पूरा साइकी, मैंने आपको बताया सिचुएशन, मैंने आपको बताया कि कंडीशन, एंड इवन आई जस्ट आल्सो टोल्ड यू कि ये पार्टिकुलर चीजों को आपको अगर समझना है तो दिस इज नॉट ओनली द केमिस्ट्री ऑफ अ फैमिली, द रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर्स एंड किंग लियर, बट यू विल कम टू नो कि ये एक सोशल ट्रेजेडी है जो आपको हर घर में देखने को मिलेगी. तो द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो ब्यूटी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, वह इसमें दिखाई पड़ती है कि शेक्सपियर जो है किसी एक फैमिली को, एक किंग को, एक कोर्ट को लेते हैं, लेकिन उसको यूनिवर्सलाइज कर देते हैं, वो उसको जनरलाइज कर देते हैं. सो व्हाट आई वांट टू से कि जब वो उसको जनरलाइज कर रहे हैं, जब वो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक डॉटर है, उनका जो नेचर है कि गॉनरिल काफी चालाक है, काफी ज्यादा चालाक है. उसके बाद अगर चालाकी में आप देखेंगे रीगन है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कॉर्डेलिया तो कोई चालाक नहीं है, बहुत ही फ्रैंक है. फ्रैंक का मतलब ये है कि what she is at inner level, जो कुछ भी वह इनर लेवल पर है, अंदर से है, वही आपको आउटर लेवल पे नजर आएगी. ऐसा नहीं है कि अंदर से वह कुछ और है और बाहर से कुछ और है. एक चीज हमें ध्यान में रखना है. तो इन पार्टिकुलर डॉटर्स जो है, जो उसको जो फ्लैटरी का जवाब देती हैं कि फादर मैं आपको इतना चाहती हूँ, जो गॉनरी कहती है, रीगन कहती है मैं आपको इतना चाहती हूँ, कॉर्डिलिया कहती कि फादर मैं आपको उतना ही चाहती हूँ जितना एक बेटी को एक पिता को चाहिए. क्योंकि जो लव है वह बढ़ता जाता है. नाउ आई एम योर डॉटर बट आई विल बी द वाइफ ऑफ समवन. तो ये जो लव है यह बढ़ेगा. तो जो जो एक डॉटर को समर्पण जो अपने फादर के प्रति होना चाहिए, वह मेरा समर्पण है. इस पार्टिकुलर चीज से, इस आंसर से किंग नाराज हो जाते हैं. एंड यू विल कम टू नो कि वो जो है उसके साथ क्या बिहेव करते हैं, क्या चीजें होती हैं. जब साम्राज्य का बंटवारा केवल इन दोनों बेटियों में कर दिया जाता है, गॉनरिल और रेगन के बीच में, जब पार इनके हाथ में आ जाता है, then you should understand कि how the nature is going to change. अभी तक जब तक साम्राज्य इन दोनों बेटियों के हाथ में नहीं आता, पार इन दोनों बेटियों के हाथ में नहीं आता, सत्ता इन दोनों बेटियों के हाथ में नहीं आई थी, तो उनकी भाषा क्या थी. जब सत्ता इन दोनों के हाथ में आ जाती है तो उनकी भाषा उसी बाप के प्रति क्या हो जाती है. दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्ले. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि when they are not in power, what they say about their father, how do they treat their father. When they get power, when they get kingdom, when they come in power, how do they treat their father. ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. इफ यू से तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं, अदरवाइज आपको पूरा लिख लेना चाहिए कि जब सत्ता उनके हाथ में नहीं होती है
तब वे अपने फादर के प्रति कैसा बिहेव करती हैं, और जब सत्ता उनके हाथ में आ जाती तब वे अपने फादर के प्रति कैसा बिहेव करती हैं। यह पार्टिकुलर चीज दिखाने का दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि यह इंडिकेट करता है कि जो एक मुझे जहां तक लगता है एक जो एक बड़ी बात कही गई है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये एक्सप्लेनेशन मेरी अपनी तरफ से हो सकता है, या हो सकता है कि द पीपल आर नॉट एग्रीड विद मी, लेकिन यहाँ पे इस चीज को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क है। किंग डंकन 80 सॉरी किंग लियर जो है एंड एजेड किंग है, 80 साल की उम्र उनकी होने जा रही है, और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस ना तो गॉन्ड्रिल को होगा, ना रीगन को होगा, ना कॉर्डिलिया को होगा। लेकिन किंग लियर का एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं करता, और वह जो है किसके बहकावे में आ जाते हैं, अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आ जाते हैं। यह नेचर दिखाता है कि किंग डंकन ऐसा लगता है कि सॉरी किंग लियर ऐसा लगता है कि वह शुरू से ही चापलूसों के बीच में घिरे हुए थे, और चापलूसी की ही बातें उनको पसंद थी। और ये ड्रामा यह भी बताता है कि आपको चापलूस जो है ऐसा नहीं है कि वह कोई कोर्टियर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है। चापलूसी आपका बेटा आपके साथ कर सकता है, चापलूसी आपकी बेटी आपके साथ कर सकती है। और अगर जो फ्लैटरी की बातें हैं, जो चापलूसी की बातें हैं, वह सबसे बड़ी पराजय होती है। एक तो ओपन इनमी होता है जो बैटलफील्ड में आता है, जो आपसे लड़ता है, आप जानते हैं कि ही इज योर ओपन इनमी, तो नाउ यू हैव टू मेक अप योर माइंड। लेकिन एक जो है क्या होता है, एक 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 हिडन इनमी होता है जो चापलूसी करता है, और आपके 24 घंटा आपके साथ रहेगा, आप जान भी नहीं पाएंगे कि यह आपका शत्रु है, और इस तरह की चीजें आपके साथ कर सकता है। Rakim ji, I'm requesting please mute yourself because you are again and again visible on screen. So what I want to say कि when you go with these points, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को समझना जरूरी है, आपको ये पूरा नेचर समझना जरूरी है। व्हाइट बोर्ड पे लिखने का मेन पर्पस यही है कि मैं लाइव आपके साथ हूं, और मैं अपनी स्टाइल में आपको पूरा ड्रामा पढ़ाऊंगा। अगर मैं अपनी स्टाइल में आपको पढ़ाऊंगा तो शायद वो चीजें आपको और अट्रैक्ट करेंगी, आपके माइंड को और ओपन करेंगी। अगर मैं ये बात जो है आपको अपनी मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके या व्हाइट बोर्ड शेयर करके बताता, तो वहां पे मैं केवल पॉइंट लिखता। लेकिन यहाँ पर जो है माई जेस्चर, माई पोस्चर, वे ऑफ एक्सप्रेशन, what I want to say, you are getting my voice, so many things you are getting here. So what I want to tell you, when you are going to study this particular play, always remember 2 points in your mind. Daughter, 2 daughters, Gondril and Regan, when they don't get power, when they are not in power, how do they behave with their fathers? वे अपने पिता के प्रति कैसा बिहेव करते हैं। जब उनको सत्ता मिल जाती है, जब वे पावर में आ जाती, तब उनका बिहेव कैसा होता है। कॉर्डिलिया, जिसको सत्ता नहीं मिलती, उसका बिहेव अपने फादर के प्रति क्या है बाद में, और जब सत्ता मिली, जब सत्ता में नहीं, जब सत्ता मिलने वाली रहती है, तब भी उसका पोजीशन क्या है। इसका नेचर कांस्टेंट है, फ्लैटरी नहीं है, यह एनिमी नहीं है, यह रियली में डॉटर है, उसको अपने फादर से लव है। लेकिन शायद इस नेचर को जो है किंग लियर जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और इसी माया जाल में, इसी मिस्ट्री में वो फंस जाते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे शेक्सपियर के लिखने का मोटिव यही है, पर्पस यही है कि आप इस ड्रामा को पढ़ने के बाद ह्यूमन नेचर को समझिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका नेचर क्या है, उसमें से कैसे कैसे ऐसे लोग हैं जो आपकी ओपन नहीं है, कौन से लोग हैं जो फ्लैटरी कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो एक तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो यू विल कम टू ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। I want to tell you कि when you go with these points, when you cover these points, so remember that कि इन सब चीजों को आपको लेना है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, ये पूछा जा चुका है कि द मोस्ट सीनियर कोर्टियर, कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर तो सिंपल सा कि वो किस कैरेक्टर किस प्ले का है, और किंग लियर के कोर्ट का सबसे सीनियर कोर्टियर कौन है, दैट इज अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। कुछ और भी कैरेक्टर है, मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आपको आगे लिखता हूं और मैं आगे समझाता हूं। GLOSTER, GLOSTER, if you find C, या हो सकता है कि अगर you find CER,
you can check it. हो सकता है कि there is one spelling mistake, but I think कि आप एक बार इसको check करें. Yeah. And glosser wise, yeah. Yeah, let me tell what do you want to say, Chakresh ji? नहीं हो रहा है. Now the next point, जो अर्लाप ग्लॉसर जो अर्लाप ग्लॉस्टर है उसका स्पेलिंग देख लीजिए, शायद अर्लाप ग्लॉसर हो सकता है, स्पेलिंग का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आई थिंक यू हैव टू चेक इट, और ऐसी कोई बात नहीं है. सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप और बात करते हैं तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज एडमंड. एडमंड, अबाउट एडमंड यू विल कम टू नो कि जो एडमंड है यह एक तरह से रियल विलेन ऑफ द प्ले है. रियल विलेन ऑफ द प्ले. एडमंड, bastard son of Gloucester, bastard son of Gloucester. Now there is another character, Edgar, Edgar. Natural son of Olaf Gloucester. Natural son of Gloucester. He was alive in the end of the play. He was alive in the end of the play. The next character is Olaf Kent. Olaf Kent, most philosophical, the most philosophical and daring courtier. Courtier and daring courtier. The next character is Curon. A clownish court, a clownish. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्यूरान का, CURAN, जो एक क्लाउनिश का रोल अदा करता है, विदूषक का, जो हंसाने का काम करता है. ओसवाल्ड, सर्वेंट ऑफ गॉन्ड्रिल, सर्वेंट ऑफ गॉन्ड्रिल, GONERIL. ड्यूक ऑफ बर्गैंडी, ड्यूक ऑफ बर्गैंडी. A suitor, SUITOR, a suitor came to marry Cordelia.
अल्बेनी। रिमेंबर दैट कि जो अल्बेनी है, he becomes the king of England in the end of the play. He becomes king of England in the end of the play. Yeah, just I want to know, is it visible last point तक नीचे तक? Again, I would like to read Edmund, real villain of the play. Yeah, okay, okay, okay. So you will come to know here कि कैरेक्टर्स जो है इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन आपको एक एक कैरेक्टर पे बात करना है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आपको पूरी बातें समझ में आएंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एडमंड का रोल क्या है, जो एडगर है उसका रोल क्या है, अगला केंट का रोल क्या है, क्यूरॉन क्या है, CURAN, ओसवाल्ड क्या है, ड्यूक ऑफ बर्गेंडी क्या है, अल्बेनी क्या है। यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं एडमंड की, तो एडमंड क्या है, रियल विलेन ऑफ द प्ले, या एक तो प्ले का एक रियली में अगर देखा जाए तो वह जो है क्या है कि बहुत बड़ा जो है विलेन का रोल अदा करता है, लोगों को लड़ाने में तमाम चीजें। और क्या है, बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉसर, but bastard in the sense he is not a natural son, whether that is adopted या in another way, but you will come to know कि उनका अपना जो है उस तरह का सन नहीं है। सो यू विल कम टू नो कि एडमंड जो है विलेन भी है, और किससे इसका रिलेशनशिप है, ग्लॉसर से रिलेशनशिप है। दूसरा एक और है एडगर है, एडगर जो है यह क्या है, इनका नेचुरल सन है, इनका अपना खुद का बेटा है ग्लॉसर का। तीसरा अर्ल ऑफ केंट है, या अर्ल ऑफ केंट जो एक चीज पूछा जा चुका है कि सबसे फिलोसफिकल और डेयरिंग कोर्टियर कौन है, सबसे फिलोसफिकल और डेयरिंग कोर्टियर अर्ल ऑफ केंट है। क्यूरान का भी पूछा जा चुका है, क्यूरान का यूजीसी नेट में आ चुका है कि क्यूरान क्या है, क्लाउनिश है। क्लाउनिश जो होता है वह विदूषक होता है, और विदूषक का मतलब क्या होता है, वह हंसाने का काम करता है। सो यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स की क्यूरॉन है, अर्ल ऑफ केंट है। नाउ द सेकंड कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओसवाल्ड, और यह क्या है, सर्वेंट ऑफ गॉन्ड्रिल है ओसवाल्ड। उतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत आपको दिमाग लगाना हो। ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, दिस पार्टिकुलर ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, यह एक तरह से जब कॉर्डिलिया की मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, तो ये भी उसमें एक उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और स्वीटर केम टू मैरी कॉर्डिलिया। अल्बेनी जो है यह लास्ट में क्या होते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं। सो यू विल कम टू नो एक पूरा एक सिचुएशन है जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू विल कम टू नो कि ये पूरा का पूरा रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे लोगों में केवल एक गलत डिसीजन हुआ, क्या था, फ्लैटरी में आना। फ्लैटरी, उनकी तीनों बेटियों ने दोनों बेटियों ने चापलूसी की, और उस चापलूसी में जब किंग लियर आके उस माया जाल में फंसते हैं, तब आप देखेंगे कि साम्राज्य भी हाथ से निकल जाता है, रिश्ते भी बर्बाद होते हैं। जो बेटी उनके लिए रियल में चाहती थी, जो उनको रियल में चाहती थी, उसका भी हश्र जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। और जो बेटियां नहीं चाहती थी, कैसे वे अपने ओल्ड फादर को ट्रीट करती हैं। तो मैंने एक तीन आपसे अभी कल की क्लास में मैंने कहा था कि बादशाहत हमेशा के लिए नहीं होती है, चीजें चेंज होती है। आज आप पावर में हैं, आज आप सत्ता में हैं, कल आपको कोई दूसरा वक्त भी देखने को मिल सकता है। कभी भी किंग लियर ने नहीं सोचा होगा कि 80 साल की उम्र में एक ऐसा दौर आएगा कि मुझे ये भी वक्त देखने को मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वक्त जो है उनको इसलिए देखने को मिलता है कि यह उनकी मूर्खता थी। ये बड़ा चीज नहीं है कि उन्होंने साम्राज्य का वो, ये एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि, या ये हम कहते हैं कि आंखों पे पर्दा पड़ गया था। बहुत सारे उसके चीजें निकालेंगे, या हम ये कह सकते हैं उनकी दूरदृष्टि नहीं थी, उनकी सोच बहुत ही नैरो, तमाम आप रीजन निकाल। जब आदमी असफल होता है
तो उसकी असफलता पर इतने सारे रीजन निकाले जाते हैं, इतने सारे कमेंट किए जाते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसकी असफलता पे बहुत सारे रीजन होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि यह ह्यूमन नेचर है। और हार्डी की मैं बात पे ज्यादा जाता हूँ। हार्डी कहते हैं कि एक हार्डी ने वर्ड यूज किया इमानेंट विल। इमानेंट विल उन्होंने वर्ड यूज किया। और हार्डी ये कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, एक पार्टिकुलर शक्ति है, जो शक्ति जो है सुप्रीम है, जिसे आप अलमाइटी कहते हैं, जिसे आप गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। शायद आप उसके हाथ की कठपुतली है, वह आपको नचाता है और आप नाचते हैं। मेरी इस व्याख्या या मेरा ये इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन हो सकता है यहाँ पे अप्लीकेबल ना हो। लोग ये कहेंगे कि शेक्सपियर तो कह रहे हैं कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इमानेंट विल बहुत बड़ी चीज होती है, और वो चीजें, और एक चीज और कहा जाता है कि एक गलती आपको क्या कर सकती है, बहुत पीछे ले जा सकती है। तो द सेम थिंग वी फाइंड हियर। तो रीडिंग दिस प्ले वी अल्टीमेटली कम टू नो कि हमें जो भी डिसीजन लेना चाहिए वह बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। विद ओपन हार्ट, विद ओपन माइंड वी शुड ऑब्जर्व, we should try to understand the nature and the psyche of those persons who are giving company to us। इसीलिए कहा जाता है कि आप दोस्त कम बनाइए, एक दो बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए जो कि आपके साथ खड़े हो, या रिलेशनशिप आपका ऐसा हो कि वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियल हो, उसमें कोई अपनापन नहीं है। और यहाँ का रिलेशनशिप में कोई अपनापन नहीं था। हर आदमी की जो निगाह है, जो दोनों बेटियां हैं उनकी जो गिद्ध वाली निगाह थी वो साम्राज्य पर रही थी। जो बेटी रियल में कुछ करना चाहती थी उसको किंग ने जो है क्या किया, उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया, उस हिसाब से उसको दिया नहीं। तो ये पूरा का पूरा हम नेचर देखते हैं कि कैसे उनका साम्राज्य कोलैप्स होता है, कैसे बर्बादी के कगार पर आते हैं, कैसे तीनों बेटियां मारी जाती हैं। क्योंकि आई डोंट हैव टाइम कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं कि एक्ट फर्स्ट में ये बेटी होती है, फिर वो ये कहती है, एक्ट सेकंड में वो आती है तो वो ये कहती है। मैंने बार बार अपनी क्लास में कहा कि आप जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की स्टूडेंट नहीं है, यू हैव टू डू दैट थिंग इन योर ओन वे। आपको खुद उसको करना है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको वो चीज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो स्टोरीज का पूरा है कि फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट, थर्ड एक्ट, इवन आई सजेस्टेड यू कि यू हैव टू सी सम मूवीज। मूवीज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब and so many movies related to King Lear you can just see। बहुत सारे प्ले हैं जिनका परफॉर्मेंस भी कहीं पे हुआ तो भी रिकॉर्ड करके वहां पे रखा गया। तो यू विल कम टू नो कि पूरा स्टोरी कैसे चलती है, उस बेटी के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, लास्ट में किंग के साथ क्या हुआ। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा लेक्चर आपको उस समय और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा अगर आप समय निकाल करके इससे रिलेटेड मूवी, इससे रिलेटेड जो प्ले का परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड करके जो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू कवर important lines। After covering important lines, I will also discuss with you कि ऐसा नहीं कि एक एक क्लास में और लूंगा जिसमें मैं कुछ और बातें करूंगा, लेकिन अभी मैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो इससे रिलेटेड। या तो मैंने पढ़ दिया कॉर्डिलियर। जी जी। या हु वाज द लवर ऑफ। Yeah, when you talk about the lover of boundaries, then remember that कि I will take a session and I will tell you the whole story. Then you will come to know कि what happens। उसके लिए जो है give me time। मैं आपको उसके लिए अभी मैंने इंडिकेशन किया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको जो चीजें मैं बताऊंगा। So when you go with these points, you will come to know कि now we are going to take what important lines। When I talk about important lines, there are some significant or important lines which we have to go.
नंबर वन, मैन इज द पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। अभी हम लोग बात कर रहे थे और देखिए यही चीजें खुद बोली गई, मैन इज द पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, यू विल कम टू नो। यह एक लाइन है जो किसके द्वारा बोली गई है, आदमी जो है भाग्य के हाथ की कठपुतली है। अभी मैंने थॉमस हार्डी का एक पॉइंट दिया था और मैंने बताया था कि हार्डी ये कहते हैं कि एक इमानेंट विल होता है और जिसे हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं और तमाम वर्ड यूज करते हैं। यही सेम बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका चरित्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि इंसान भाग्य की हाथ की कठपुतली है। कभी जो राजा बना था आज वही रंक भी बना हुआ है, और जिन बेटियों को वो इतना विश्वास करते थे वही बेटियों ने उनके साथ कैसे छला या किस हिसाब से किया इस चीज को, ये बात कौन कहा हुआ है, ये बात जो है क्या कहते हैं कि किंग लियर कहते हैं, किंग लियर। Second important point I want to tell you, जेस्टर्स, ये पूछा जा चुका लाइन, जेस्टर्स डू ऑफन prove prophets, do often prove prophets। Gloucester, GLOUCES, Gloucester। सॉरी, ये दिस पार्टिकुलर लाइन रेगन ने कहा है, रेगन, जेस्टर्स डू often prove prophets, it has been said by Reagan। This is the short line, Reagan। So remember that कि when I talk about these points, yeah, when you come to know, is it visible? Is whiteboard visible? Yeah, okay. So what I want to say, कि you will come to know कि jester do often prove prophets। ये जो बात है इसमें ये चीज कही जा रही कि कभी कभार जो है, जो क्लाउनिस ने जो बात कही है या जो हम लोग प्रोवर कहते हैं, ऐसा लगता है कि वह जो है जैसे प्रॉफिट्स की बातें होती हैं। तो जेस्टर की जो भी, जेस्टर जो वर्ड है यह इंडिकेट करता है कि जो हम लोग जो है प्रोवर कहते हैं या जो हम लोग इतनी बुद्धिमत्ता वाली बातें करते हैं या हंसी में कभी कभार भी जो बातें कही जाती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वे प्रॉफिट्स की बातें, प्रॉफिट ही कोई उसमें भी भविष्यवाणी छुपी रहती है और वह बाद में सही सिद्ध होता है। जेस्टर डू ऑफन प्रूव प्रॉफिट्स, जो हमारी भविष्यवाणियां होती हैं वे ऐसा लगता है कि वे ऐसी ही कही गई हैं लेकिन वे सही सिद्ध होती हैं। सो यू विल कम टू नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, the third, it is the fashion, it is the fashion that discard the father, that discard the father, it is the fashion that discard the father, you should have just little mercy, you should have thus little mercy, it is the fashion that discards the father, you should have thus little mercy on this place,
It has been said by whom? King Lear. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पता होना चाहिए. Who is that? Who is that can tell me who I am? Who I am. ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्ले का, मेरी अपनी नजर में ये पूरे प्ले का थीम को ही बता देता, पूरी समरी को बता देता है. क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता दे मैं कौन हूं? एक राजा जब एक क्वेश्चन करता है, हु इज दैट कैन टेल मी, वह कौन है जो मुझे बता दे हु आई एम. वंस यू वर द किंग, वंस यू हैड पावर, वंस यू वर इन सेंटर, बट नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन हु आई एम या हु एम आई. एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे शिफ्ट कर रही है, हाउ द पावर इज गोइंग टू शिफ्ट. पावर कैसे शिफ्ट हो रहा है, आपकी सिचुएशन कैसे बदल रही है, ये पार्टिकुलर लाइन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. हु इज दैट? Now the next is witness the world. Witness the world. Witness the world that I create thee. That I create thee. Here my Lord and Master. Here my Lord and Master. It has been spoken by Regan. So you will come to know these are the important lines, these are the significant lines which everyone should remember. और दूसरी वाली पूछी जाती, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन इज द पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी. दूसरा, जेस्टर डू ऑफन टू प्रॉफिट्स. थर्ड है, इट इज द फैशन दैट डिस्कार्ड्स द फादर. You should leave just little mercy on this place. Who is that can tell me who I am? Witness the world that I create. में मैंने ई छोड़ दिया लिखना. Create thee here my Lord and Master. Regan. रिगन ने REGAN रिगन. फोर्थ का लाइन है किंग लियर. शायद perhaps I have not written fourth. Okay. किंग लियर. One I have two more lines I would like to write. After it I will close the session. Should I erase it? King Lear. It has been written King Lear. I would like to one or two more lines. After it, I will wind up the session, and in the next class, I will tell you the whole summary, especially questions of Gajenji or अगर जो भी चीजें हैं. Now the next point is that is 6. Witness the world. Witness the world
that I create this dialogue, that I create. ये हो चुका है. अच्छा, now write down the next point, that is when we are born. The next line is when we are born, when we are born, comma, we cry that we are come to this great stage of fools, that we are come to this great stage of fools, to this great stage of fools. You will come to know it has been said by whom. It has been said by King Lear. King Lear. One more line I would like to write. The weight of this sad time. बहुत ही पैथेटिक डायलॉग है. The weight of this sad time. The weight of this sad time. We must obey, speak what we feel. We must obey to speak what we feel. What we feel. Not what we ought to say. Not what we ought to say. O-U-G-H-T. Ought to say. It has been said by Albany. So you will come to know these are the important dialogues of this play. Now the next take और मैं लिख दूं, I have a duty, sir. I have a duty, sir. My master is calling me. My master is calling me. I have to go on the journey. I have to go on the journey. It has been said by whom? It has been said by Earl of Kent. Earl of Kent. K-E-N-T. So these are the significant points. These are the important points which you have to remember या which you have to follow. जो आपको कवर करना है, आपको इनके साथ जाना है, या आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है. So ultimately what I want to tell you कि always जब भी कोई प्ले पढ़िएगा, उन सारे प्ले में उसका सेटिंग, उसका थीम, उसका कैरेक्टर, एक उसका समरी यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक उसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, या आप ये कह सकते हैं कि
उसका 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 जो है फिलॉसफी क्या उसमें बताई गई है। बाकी तो आप ये समझ ही सकते हैं कि किसकी शादी किसके साथ, कौन किसकी बिटिया, कौन क्या, और उसके बाद वो जो है स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, वो मूवी भी देखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे। समझना जो जरूरी है उस पार्टिकुलर फिलॉसफी को, कि ड्रामेटिस्ट क्या दिखाना चाहता है, ह्यूमन नेचर दिखाना चाहता है। ड्रामेटिस्ट ये दिखाना चाहता है कि वी आर पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। शायद वह इमानेंट विल की बात करता है, शायद वह ये कहना चाहता है कि कुछ कमजोरियां हैं जो कि हम उसको अपनी जिंदगी में करते हैं, वही हमारे पतन का कारण बनता है। So now I think that I just want to know only the feedback. No question in this session because I will just keep another session for this whole play जिसमें मैं केवल स्टोरी पे बात करूंगा और मैं आपसे केवल क्वेश्चन की पर बात करूंगा। तो in this session you can just send me the feedback, how do you find and what other things do you see here, कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया अभी इवनिंग से, ये आपको कुछ बेहतर लग रहा है या और क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या किया जा सकता है। लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग, लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग। या कैन एनीवन टेल मी। या रिजवान जी। Yeah, there is a disguised character. What I said ki I in this session you have to only give me feedback. You don't have to ask any question because I have kept another session. Even Gajen ji also asked a question that is in my mind. So I will take another session, and in that session I will discuss with you disguise का, उनका लवर का, तमाम चीजें। ऐसा नहीं कि एक चीजें है। अगर इफ यू आस्क ओनली वन क्वेश्चन तो मैं वहीं तक सीमित रह जाऊंगा। आई विल टेक अनदर सेशन जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपसे डिस्कस करूंगा। या या ठीक है। या वन थिंग आई वांट टू नो कि द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या पर्टिकुलर थिंग लास्ट इवनिंग, इज इट फ्रूटफुल और नॉट। नहीं, इन द व्हाट आई वांट टू से कि शुड आई यूज दिस व्हाइट बोर्ड टू टेक योर क्लास, हमें इसी व्हाइट बोर्ड के तरीके को इसी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एंड एनी अदर पर्सन, देयर इज कृष्णा जी। या कृष्णा जी। नहीं, I'm not asking my, I'm not asking about way of teaching. Just tell me only one point कि whether should I use whiteboard when I take your class or not. अच्छा, इसका नहीं, सेटिंग बिल्कुल जो भूपेन जी, मैं सेटिंग का ये है कि अभी मैंने आज ही अगर मुझे मिला तो मैं ट्राईपॉड आज ही लूंगा। और मुझे एक सजेशन जो है उनके द्वारा दिया गया, अनिल जी के द्वारा, कि अगर इसमें लाइटिंग की और व्यवस्था हो जाए तो मैं एक दो लाइट भी रूम में लगाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और रोशनी नजर आए। तो ये सारी मैं चीजें मैं मैनेज करूंगा, आज ही मैं मैनेज करूंगा एनी हाउ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इससे आप ज्यादा कंसेंट्रेट हो रहे हैं व्हाइट बोर्ड का यूज करने से, बिकॉज आई एम आल्सो विजिबल, जेस्चर पोस्चर तमाम चीजें जो एक लेक्चर वो चीजें होती है। यू आर ज्यादा या या एक्सेप्ट इट देयर इज अंबिका जी। अंबिका जी, व्हाट डू यू वांट टू से। अच्छा अच्छा, देयर देयर इज शिल्पी मैडम। शिल्पी मैडम, व्हाट डू यू वांट टू से। शिल्पी जी। साइका जी। You understand all the thing, it means that this particular way of expression is better than sharing the, yeah, than sharing the whiteboard of
मोबाइल पे जो ऐप का था उसको शेयर करने से ज्यादा बेटर। ओके। या शिल्पी जी, गुड मॉर्निंग। या ओके, थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू। एंड राकेश कुमार जी, या अनिल कुमार फ्रॉम प्रतापगढ़, अनिल कुमार जी। या अनिल जी। ओके ओके। एंड actually I want to get the feedback of each and everyone. There is Nikhat, भूपेन भाई का मुझे मिला, निखत जी, निखत जी। हाँ, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? एंड रिजवान जी आपका क्वेश्चन मेरे माइंड में है, गजेंद्र भाई का भी क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं उसको एक अलग सेशन लूंगा। जो आपने जो है डिस्गाइज की बात की हो उस पर भी मैं बात करूंगा, पूरी की पूरी मैं उस पर बात करूंगा। बट मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस पे अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि हाँ इस तरह की चीजें जो अभी 2 दिनों में जो एक्सपेरिमेंट किया गया क्लास के लिए, अगर इस पे किसी को दिक्कत हो तो वो अपनी बात रखे। ज्यादातर मुझे पॉजिटिव ही मिला हुआ। या कृष्णा जी। अच्छा, इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कृष्णा जी? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं आपको समझ ही गया कि जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप उस चीज को नहीं लिख पा रहे हैं, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ वही आप लिख पा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं सेंड करूंगा। या जी। और कोई कुछ? कोमल जी। हम्म। नहीं, when if if you just I want to make it clear कि कोमल जी एंड कृष्णा जी दे ऑल आर सेइंग कि दैट दे मिस्ड सम पॉइंट्स। डोंट, यू डिडंट मिस, इसको आपने मिस नहीं किया है। अभी जो मैंने सेकंड सेशन रखा है उसमें इन्हीं सारे छोटे छोटे पॉइंट पे जो आज का क्वेश्चन हुआ, जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने मिस किया या आप नहीं लिखे, या जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो सेकंड सेशन है उसमें केवल इसी पर ही बात होगी। आप इसको कहीं से कोई चीज मिस नहीं किए हैं। बस व्हाइट बोर्ड से एक चीज ये होगा, मेरे यहाँ पे खड़े रहने से एक चीज ये होगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि एक जीवित आदमी, चलता फिरता इंसान आपको पढ़ा रहा है। वहां पे समटाइम्स वॉइस तो यू आर गेटिंग माय वॉइस बट यू आर, आई एम नॉट विजिबल एंड देयर इज नो जेस्चर पोस्चर। और जो भी क्लास का जो इफेक्टिव क्लास होती है उसमें ऑलवेज यू विल फाइंड दैट कि द प्रेजेंस ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो प्रेजेंस ऑफ टीचर होता है उसका जेस्चर, पोस्चर, वे ऑफ टीचिंग, फेस एक्सप्रेशन, all these things that play a very significant role to make class enlightened, to make class beautiful। तो एक हम लोग पैटर्न को यही चलेंगे। बाकी जो आपने ये सोचा है कि आपको हमने मिस किया, यू डिडंट मिस, उसको हम लोग जरूर बात करेंगे। एक एक पॉइंट कभी आएंगे दोबारा क्लास में तो आप लोग और एंजॉय। या I have kept another session, I will keep, I will take another session इसके साथ बात करेंगे। या चक्र गगन जी। हम्म, हम्म,
Hmm. 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 Yeah. 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 Yeah, yeah, there is Rizwan ji and Shahzad ji and Kareem Khan ji. Agar if you want to give your feedback, yeah, you want to say anything, and Poonam madam, Tipu Sultan, कोई एक आदमी, not getting, yeah, Tipu ji. This, एक एक करके, या अभी टीपू जी कह रहे थे, मैं टीपू जी का मैंने पाया कि उनको ये बेटर लग रहा है उसके। रिजवान जी आप क्या कह रहे हैं? रिजवान, अच्छा बेटर। एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन देयर फीडबैक। रकीम जी आपको कुछ कहना है, रकीम खान जी? या या उमा शंकर फ्रॉम प्रतापगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, रमेश कुमार जी फ्रॉम शाहजहांपुर। रमेश कुमार जी, शिवपाल जी, रमेश कुमार जी, इफ दे आर अवेलेबल हियर। आई थिंक नाउ आई शुड कंक्लूड द होल। या रमेश जी, या okay, okay. Now I'm going to wind up this session. We will meet in the evening.